Good evening, my lovely children. This is Shikha Sharma, your social science mentor. And now we are going to discuss about the events, like finally the outbreak of the revolution. In the last modules, we have studied about the basic, like what was the scenario from where we started. After then, we saw the distribution of the French society, the taxation burden, the two estates enjoying few privileges by birth, and followed by we understood the subsistence crisis and the ideas of the middle class inspired by the philosophers. Okay, if you have if you haven't seen the previous videos, I would like you to just have a look over them. Now we'll study about the outbreak of the revolution. क्या होता है बच्चों, कभी भी कोई भी इवेंट हिस्ट्री में एकदम से नहीं होता, कोई भी रीज़न इमीडिएट कॉज बन जाता है. जैसे आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन में भी वोटिंग राइट्स बिकेम द इमीडिएट कॉज. बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैव बीन द इवेंट्स दैट लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, तो इवेंट्स में हम बिगिनिंग से बताएंगे. द सप्रेशन ऑफ द थर्ड एस्टेट, especially the peasants, the privileges by birth concept. Okay, then we'll explain the subsistence crisis. Then we'll come to the ideas of the middle class because people were already not happy and they were inspired by the philosophers and their ideas of a new form of governance, of a just basis of a governance. फिर हम कहेंगे and finally the immediate reason became this. वो क्या है अब हम देखेंगे. Now initially only मैंने आपको बताया था कि there was a political body, okay, which was the Estate General. Okay, this political body was there. थी ये पॉलिटिकल बॉडी, ये बहुत पहले से काम करती आ रही थी. क्या रोल था इसका? फ्रांस में जब भी ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम मुनार्क को टैक्सेस बढ़ाने होते थे तो इट हैड टू कॉल द एस्टेट जनरल, टेक द परमिशन, डिस्कस एंड देन इंक्रीज द टैक्सेस. सो ये काम था. अब आप कहोगे कि मैम फिर तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की थी ही नहीं, फिर तो वो लिमिटेड था बाय द एस्टेट जनरल. नो, there was one limitation of Estate General. The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. यही इसकी weakness थी. ये क्या weakness थी? It was a political body. All the three sent their representatives और ये तीनों estate हमें पता है जिसमें से 1 and 2 साथ के हैं और थर्ड अकेला बचेगा. And the other weakness, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. और last time monarch ने 1614 में ये body बुलाई थी. So now this only tells the weakness of this body. But जैसा कि हम लाइफ के लिए भी कहते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे अगर हम ध्यान दें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हो फिलोसोफर्स का एंड लोगों का जो किंग पे प्रेशर पड़ा ना, किंग को टैक्सेस तो बढ़ाने थे, हमें पता है. सो दिस वॉज अ गुड फीचर ऑफ लुई 16 दैट ही थॉट टू इंक्रीज द टैक्सेस एंड कॉल दिस पॉलिटिकल बॉडी टू डिस्कस. एंड ये पॉलिटिकल बॉडी एक लिमिटेड बॉडी थी. इसकी क्या वीकनेस थी? दैट अलोन द बॉडी कुड नॉट itself decide when to convene a meeting. The king, the monarch was supposed to call convene the meeting. Means meeting कब रखनी है ये king decide करता. ठीक है. अब क्या होता है 5th मई को लुई 16, let me just remove all this so that you do, yeah. So on 5th May 1789, now this king, he called together an assembly of this Estate General. Why? Because he wanted to increase the taxes. हमें पता है why he wanted to increase the taxes. Okay. So then वर्साइल में ये मिलते हैं. अब सिनेरियो समझिए बच्चों. सिनेरियो क्या है? फर्स्ट एस्टेट है, ठीक है, सेकेंड एस्टेट है एंड थर्ड एस्टेट है. नाउ दिस फर्स्ट एस्टेट had 300 representatives, the second also had 300 and third one, कितनी अच्छी बात है, the third estate had 600 members, delegates, so it is quite good. ठीक है. and they were allowed to stand at the back, they were not allowed to be seated. आप देख रहे हो discrimination. The first and second, they were seated in the rows and 600 members of the third estate had to stand. थर्ड एस्टेट में अब जो लोग थे वो प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे. नाउ द मोमेंट आई से दिस, व्हाट शुड कम इन योर माइंड? द मिडिल क्लास पीपल. ठीक.
अब क्या होता है, एंड हु वर डिनाइड peasants, artisans एंड women. आप देख रहे हो डिस्क्रिमिनेशन, बेटा ये आगे भी रहेगा. जब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, अभी फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा 1791 में, तब भी ये चीज़ रहेगी. दिस इज गोइंग टू प्रिवेल, एंड विमेन तो बहुत लास्टली दे आर गोइंग टू गेट देयर पॉलिटिकल राइट्स. So they were denied entry, and somehow they, with the help of letters, they sent their request to the representatives. तो सिनेरियो हमें समझ में आया. स्टेट जनरल की बॉडी को बुलाया गया, which was a political body, to discuss the proposal for increase in taxes. 300 representatives from each who were allowed to sit, while 600 from the third estate, generally they were middle class, and they were just asked to stand. Who were not allowed to enter, peasants, artisans and the women. Now what is going to happen? अब वोटिंग कैसे होती थी? One estate had one vote. ठीक, first estate one vote, second estate one vote and third estate one vote. So Louis was also going to continue with the same. बट अब आप खुद सोच के देखो, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, इनकी प्रॉब्लम है अलग. दे आर बीइंग सब्जुगेटेड और ये प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं. अगर इनका 1-1 वोट होगा तो भी ये 2 वोट्स हो गए, और थर्ड एस्टेट का 1 वोट हुआ, तब भी हु इज गोइंग टू, हुज डिसीजन इज गोइंग टू प्रिवेल? ये वाला. थर्ड की तो बात मानी ही नहीं जाएगी ना, ये तो हमेशा माइनॉरिटी में रहेगा. सो वही होता है अब थर्ड एस्टेट के मेंबर्स, बिकॉज दीज आर द मिडिल क्लास पीपल. ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो अब अपनी बात को कहेंगे नो, each member should have one vote. And in the last module only I told you that this was one of the democratic principles put forward by the in the book Social Contract by Rousseau. ठीक, अब किंग इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा. किंग कहेगा नो. थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम सिनेरियोज को समझ रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंड, द थर्ड एस्टेट ये समझते हैं कि नाउ वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द होल फ्रेंच नेशन, ऑफ द कॉमन मासेस. अब ये एक टेनिस कोर्ट में असेंबल करेंगे इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल. ठीक, ये खुद को डिक्लेयर करेंगे अ नेशनल असेंबली. ध्यान रखिए बच्चों, अभी इट इज़ नॉट बीइंग गिवन रिकॉग्निशन बाय द किंग. ये खुद से खुद को डिक्लेयर करेंगे, एंड दे स्वर नॉट टू डिस्पोज जब तक हम अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते. वो कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ गोइंग टू लिमिट द पावर्स ऑफ दिस मोनार्क. ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की चलती आ रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको रोकेगा. ठीक, सबसे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पे 2 लीडर्स आते हैं, मिराबियो एंड अबिसैये. मिराबियो एक नोबल फैमिली का है, सो हम समझ सकते हैं ही बिलोंग टू विच स्टेट, but was convinced he was not with the favor of the feudal privilege. He was against that, and ये बहुत inspiring speeches देते हैं. Then Appice, he was originally a priest, and he wrote what is the third estate, and a very influential pamphlet जिसमें वो ये बताते हैं कि this is the strongest of all. Okay, and this picture children, this is about the tennis court oath. Can you see the people taking oath that yes, आप देख रहे हो आपस में, they all, that yes, we all have to live together, fraternity, and we are going to frame the constitution. हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क. अब ये नेशनल असेंबली जब ड्राफ्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन, इसी बीच कंट्री में बहुत टर्मोइल है, बहुत वायलेंट सिचुएशन है. क्यों है? सेम सबसिस्टेंस क्राइसिस. हमने कहा था कि वो फ्रीक्वेंट हो गया था ओल्ड रिजीम में. बैड हार्वेस्ट हमें पहले ही पता है, पॉपुलेशन इंक्रीज, फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस, प्राइस बढ़ रहे हैं. अब बेकर्स सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और होर्ड कर ले रहे हैं. व्हाट इज होर्डिंग? कीपिंग समथिंग असाइड इन द एक्सपेक्टेशन कि प्राइस बढ़ जाएगा तब सेल आउट करेंगे. तो क्या हो रहा है, अब लोग बहुत वायलेंट हो जाएंगे. एंड विमेन दे गॉट एंग्री एंड दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स. अब किंग को लगता है वायलेंट सिचुएशन है, तो किंग 14 जुलाई को द किंग ही ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है. एंड द एजिटेटेड क्राउड नाउ डिस्ट्रॉयड द बेस्टील. सो नाउ यू अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ बेस्टील को, दैट प्रिजन एंड ऑल. फाइन, दिस वॉज येस. सो वो फोर्ट्रेस, वो जो प्रिजन था जहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता था, अब जब लोगों को पता लगेगा कि किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया है तो लोग वहाँ पे जाएंगे इन द सर्च ऑफ एम्यूनेशन.
we'll come to that. So कंट्री साइड में क्या होता है, बाहर की तरफ लोगों को लगता है कि the Miner had hired bands. Now what is this personality Miner? The high class people, big landlords and something. So क्या होता है बच्चों, few terminologies, they are very subjective. So you should remember that these are some sort of people who are subjugating, who are keeping some sort of land with themselves, the big landlords exploiting people. अब ये क्या होता है, now the people are they understood that the lords of the manor had hired bands of brigades. Now what is going to happen in the countryside? Countryside में the people they thought that the lords of the basically बहुत सारे rumors spread होते हैं. बेटा ये situations हैं, लोगों को लग रहा है किंग ने ट्रूप्स कर दिए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं, एंड द rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands जो क्रॉप्स को ख़राब करने जा रहा है. Okay, so what is this manor? Basically manor, manor, it's pronounced like that. So big the lands जिसमें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का लैंड, उनका घर, ये सब होता था. So they thought कि lords of the manor is that big estate, land का, that portion जिसमें घर भी आए, जिसमें fields भी आए, that is manor. So जो इनके मालिक थे, लोगों को लगता है कि वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया. वाई? फर्दर लोगों को परेशान करने के लिए. सो नाउ द पीपल दे अटैक द चैट्यूक्स. व्हाट इज दिस चैट्यू? इट इज़ बेसिकली, आप मान सकते हो, घर उन नोबल मैन का. अब उस पर अटैक करेंगे, ग्रेन्स की होर्डिंग कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स को जला देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे वो लोन लेते थे, होता है ना मॉर्टगेज करके समथिंग, एंड और कोलैटरल कर दिया. नंबर ऑफ नोबल्स अब भाग जाएंगे. अब जब किंग ये सिचुएशन देखेंगे तो किंग फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू दिस नेशनल असेंबली. फाइनली कहता है कि ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, दैट इज गोइंग टू लिमिट माई पास, आई एक्सेप्ट दैट. So 4th August 1789, Assembly passed a decree. Decree means order, abolishing the feudal system of obligation and taxes. ये जो privileges चल रहे थे, clergy were forced to give their privileges. So बच्चों याद रखो, which two estates were forced to give up their privileges? First estate and the second estate. Okay, and tithes were abolished. The lands owned by the church, they were confiscated कि भाई ये developmental purpose के लिए use हो. And the government acquired obviously assets of 2 billion libraries. So this is all about your events that finally led to the outbreak. अगर आपसे पूछा जाए discuss about the scenario या discuss about the outbreak, write a short note on outbreak, तब आप यहाँ से शुरू कर रहे. Increase in taxes. How will I proceed? I'll say taxes. So increase in taxes. इसके लिए क्या किया? Estate General को call up किया, body को, where the third estate demanded for one person, one vote, which was not accepted by the king. So the third estate left. Tennis court में मिलते हैं and they decided to frame their constitution. Countryside में बहुत violence होता है. Finally king जो है इस national assembly को, जिसने खुद से खुद को नेशनल असेंबली बोला था, 4th अगस्त किंग बोलता है कि ठीक है, आई गिव रिकग्निशन टू दिस बॉडी. एंड ये बॉडी, दिस नेशनल असेंबली, तुरंत डिक्री से बाय ऑर्डर प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देती है. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो इन स्टेट्स ने कैप्चर की थी उसको कन्फिस्केट कर लेती है, मीन्स कैप्चर कर लेती है वापस से. ओके, एंड अगर हमसे पूछा जाता है डिस्कस द इवेंट्स दैट लेड टू द आउटब्रेक, तो हम इसको छोटे छोटे बुलेट्स में डिवाइड कर लेंगे. इंक्रीज द इकोनॉमिक सिचुएशन, इंक्रीज इन टैक्सेस, सबसिस्टेंस क्राइसिस एंड ऑल, लाइक आई डिस्कस्ड initially also. Okay, so thank you so much children. I tried making video like in this form because I thought that moving with the help of NCERT would be a bit beneficial for you. Let me know how was this one, a different one from the Kagaz Kalam version. Take care everyone. God bless you. Stay updated.